Hello friends, this is Dharamraj. In the last class, we have seen some concepts regarding percentages. Those were basic concepts and different models. So today we will be dealing with some few problems of percentage which are of different models. तो चलिए आज का एक पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़ते हैं. लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो चीज़ हमें जो पता नहीं होता है उसे हम मोस्टली 100% मान के चलते हैं. सो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. As you all can see, what's written in the question is a student has to obtain 33% of total marks to pass. He got 125 marks and failed by 40 marks. Find the maximum marks. So as I've told you, the things which we don't know, we have to consider that as 100%. What's given in the question is the passing marks, passing percentage, which is 33%. And is also given that a person got 125 marks, but he failed by 40 marks. If the person who failed, if he had scored 40 marks, he would have got passed. But instead of passing, he failed. And we have got the passing marks percentage. And with the help of this information, we have to find 100% of marks. So let's begin. So what's given is 125 marks is a score scored by a student, but he failed by 40 marks. Why we are adding is because we have got the passing marks percentage. To reach of the passing marks percent, a student has to score 40 more marks. So we are adding these two. After adding, we'll get 165, so which is value of 33%. So 33 ones, 33 fives. So 1% का वैल्यू जो है 5 मार्क्स है. अगर हम चाहे इसको अपन दो अलग तरीके से इसको टाइम सेव करने के हिसाब से मैं बता दूं, आपको खाली यहाँ पे 2 0 लगाना है और ये 2 0 यहाँ लगाना, तो 100% का वैल्यू आपको 500 मिलेगा. कुछ अगर अपने को शुरुआत से आदत जो है 1% इज इक्वल टू 5 मार्क्स है, तो इसको अगर कुछ लोग ऐसा भी करते इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100 कर लेंगे, तो 100% इज इक्वल टू 500 मार्क्स. इंस्टेड ऑफ ये स्टेप करने से अच्छे हम डायरेक्टली ये 0 0 लगा देते तो अपने को वैल्यू मिल जाता है. तो इस तरीके का एक मॉडल है जो अलग है. और ये यहाँ पे हमने क्या देखा, 125 मार्क्स, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ पे मार्क्स दिया हुआ है. लेकिन और एक क्वेश्चन हम ऐसा करते हैं कि यहाँ मार्क्स की जगह पे परसेंटेजेस ले लेते हैं. तो चलिए परसेंटेजेस ले लेते हैं. यहाँ पे पासिंग परसेंटेज जो है 36 ले लेंगे, यहाँ पे जो मार्क्स ऑप्टेन है 24% ले लेंगे, और यहाँ पे जो है 18 मार्क्स लेंगे. अब आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं कि सेम है क्वेश्चन, जैसा पहले था क्वेश्चन वैसे ही है, बस हमने यहाँ पे क्या किया, खाली वो मार्क्स की जगह पे परसेंटेज का वैल्यू रख दिया है. तो अब देखिए, अ स्टूडेंट हैज़ टू ऑब्टेन 36% ऑफ टोटल मार्क्स टू पास. ही गॉट 24% एंड फेल्ड बाई 18 मार्क्स. फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. चलिए जो पहले प्रीवियस प्रॉब्लम्स था सेम उसी तरह अपने को करना है. So here we got a 24% marks obtained by a student and he failed by 18 marks. So he has to score 18 more marks to get passing percentage, which is 36%. So we are adding these two. Sending all the percentages value to one side, we'll get 36% minus 24%, which is 18 marks. So after solving, we'll get 12% value is 18 marks. So 12% value is 18. So we need the 100% marks. So after what we have to do is send this 12 over there, which is the 12 which is multiplied here will get divided over here. So 100% marks is equal to 18 by 12 into 100. 2 6 2 50s, 6 1 6 3s, 3 into 50 is 150 marks is the total marks which is asked in the question. So this is the way how you can solve if the question which gives 125 marks or 24%, which is scored by a student. So let's move forward for another question. So ये रहा आज का अपना थर्ड क्वेश्चन. चलिए पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ. तो मनीष got 20% more marks and failed by 30 marks. Ganesh got 32% marks and scored 42% marks more than the passing marks. Find the passing percentage. So this is what we have to find. So there are 2 persons, one is Manish and other one is Ganesh.
So what the score of Manish? He scored 20%. And how much did he failed by? He failed by 30 marks. And what's the score of Ganesh? So Ganesh scored 32% marks and he scored 42 more marks. So if we want to find the passing marks, we have to subtract the 42 marks from the marks obtained by Ganesh, so that we can find the passing percentage mark with the help of Ganesh. After equating these two, we have to take all the percentages terms one side. So 32% minus 20% will be 30 plus 42 marks. So the value will be 12% is equal to 72 marks. So 1% value is 1s are 6. So 1% value will be 6. What we have to find is passing percentage. So let us consider the value of Manish. So Manish scored 30. If Manish have got 30 more marks, he would have passed. So 6 into 5, we have to convert this into percentage. So 6 into 5 will be 30. We have to say multiply with 5 over here. So 5%. 5% value will be 30. So we have to add the 5. We have to keep the 5% value over here. So 20% plus 5% will be 25%. So the passing percentages will be 25%. This is the way how we can solve with the help of converting the percentages over here. The most crucial step in this is over here. So most of the students, what they do is they'll multiply with 100, they'll again subtract with this. So instead of going this, we can do simply with this, multiply 5 with over here and we'll get 30. So 30 value we can substitute here as a 5% and add. So the passing percentage will be 25%. This is how you can solve another different level of question. So let's move to another question. So ये है अपना अगला क्वेश्चन. इसके पहले क्वेश्चन में आपने देखा था वो पासिंग स्टूडेंट्स का पास और फेल के हिसाब से. अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है अपना वोटिंग के हिसाब से कैसा करते हैं. सो द क्वेश्चन इज देयर आर टू कैंडिडेट्स ए एंड बी इन एन इलेक्शन. वन गॉट 41% ऑफ टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाई 5580 वोट्स. फाइंड द टोटल वोट्स. सो जैसा कि मैंने पहले बताया, जो जिस चीज़ को हमें पता करना है उसे हम 100% लेते हैं. सो 100% का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट्स गो विद सम लॉजिकल आइडियाज. सो टोटल वोट्स, we have to find the total votes. So total votes will be sum of candidate won plus candidate lose. So मतलब इसका मतलब ये है, अब टोटल वोट्स पता करना है हमें, तो जो कैंडिडेट जीता है और जो कैंडिडेट हारा है वो दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो हमें टोटल वोट्स का वैल्यू मिलता है. सो कैंडिडेट वॉन का वैल्यू कितना है? इट इज़, वो हमें पता नहीं है, वो बोले बताता हूँ मैं वो कैसा करना है. समझिए ये आपका 100% है. 100% में से एक कैंडिडेट को कितना मिला है? 41%. दूसरा कैंडिडेट कितना मिला होगा? 100 माइनस 41 करेंगे तो 59% ऑफ दूसरा कैंडिडेट को वोट मिला है. लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें? हाउ मच द वन गॉट 41% टोटल वोट्स एंड लॉस्ट बाय 5580. जो कैंडिडेट हारा हुआ है, the person who lost the elections, he got 5580 less votes. So this is the reason, the difference between these two will be 5580. So with this we can find the value of the 100%. So that is 59% minus 41%, which is equal to 5580. क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस एक व्यक्ति को ज़्यादा मिला, एक व्यक्ति को कम मिला, तो वो दोनों का जो परसेंटेज का डिफरेंस होगा वो आपका ये वोट्स होगा. तो चलिए, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस विल गेट 18%. 18% वैल्यू इज 5580. 6 3s, 6 9s are 54. We'll get carry over here. 6 3s are 18 and 0. So one value is 310. So what we need to find is a value of 100. So 0 0 0 0. So this is the total number of voters. So this is the way how you can solve questions regarding the votings. So let's go forward for another question of the same model of same voting questions.
सो ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। चलिए तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एट एन इलेक्शन इन्वॉल्विंग 2 कैंडिडेट्स 68 वोटर्स विल डिक्लेयर इनवैलिड। अच्छा, यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट है, इसे हम बताता हूँ कैसा करना है। द विनिंग कैंडिडेट सिक्योर 52% एंड विन्स बाय 98 वोट्स। द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। सो सेम बेसिकली हमें क्या 100 कंसिडर करना है। आप कुछ देर के लिए इस सेंटेंस को भूल जाइए, ये 68 वोटर्स वेर लाइक इनवैलिड थे, इनवैलिड रहने देते हैं, उसको भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। अब बढ़ते हैं दूसरे की तरफ। 1% सिक्योर्स 52% ऑफ वोट्स। सो बाकी परसेंट, वो दूसरे परसेंट कितना मिलेगा 48%। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, एक जो पर्सन है, जो जीतने वाला पर्सन है, उसने 98% वोट से ज़्यादा से जीता है। तो द डिफरेंस बिटवीन 2 विल गिव द 98 वोटर्स वैल्यू। सो डिफरेंस विल बी 4%। 4% वैल्यू विल बी 98. So 1% value is 4 2s 8, 4 2s 8, 4 4s 16.5. What we need is 100% of value. So what we have to multiply 100 over both sides. So 2 4 5 0. This will be the value of 100%. But this is not the answer. What we have did, we have taken, हमने क्या किया, ये 68% जो वोटर्स है हम भूल गए थे। अब वो 68 वोटर्स को है हम इस तरफ ऐड करते हैं। So value will be 8 1 5 2. This will be the final value of the 100%. चलिए इस तरीके से हम लाइक इनवैलिड वोटर्स का देता है तो हम ऐसा करते हैं। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द बॉयज एंड गर्ल्स इन द कॉलेज आर इन द रेशियो 3:2. इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर अडल्ट्स, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट्स। क्वेश्चन में क्या दिया, एक कॉलेज है, उसमें बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। अब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना है 3:2। बट अगर हम ये परसेंटेज, ये छोटे वैल्यू का हम परसेंटेज निकालेंगे तो अपने को वैल्यू जो होता है पॉइंट्स में जाएगा, और पॉइंट्स में कैलकुलेट करने के लिए क्या हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। एग्जाम में क्या करना है हमें, यहाँ 00 यहाँ 00। रेशियो में आप कितने भी जीरो लगा लेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका वैल्यू जो रेशियो है बदलेगा नहीं, इसीलिए आप यहाँ पे डबल जीरोस लगा लेंगे। और क्या दिया है क्वेश्चन में अपने को, देयर आर 20% ऑफ बॉयज़ हु आर अडल्ट्स। इसका जो है 20% अडल्ट्स है, और गर्ल्स में कितने हैं 25% गर्ल्स आर अडल्ट्स 25%। तो बचे से जो कितने हैं बॉयज़ यहाँ पे अपने को 80% बॉयज़, और यहाँ गर्ल्स कितने बचेंगे 75% गर्ल्स। अब ये जो है वो नॉन अडल्ट हैं या चाइल्ड मान लीजिए, ये सब चाइल्ड हैं, चिल्ड्रेंस अगर आप समझे तो। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु आर नॉट अडल्ट्स। तो ये अपन चाइल्ड के बजाय नॉट अडल्ट्स लिख लेते हैं, यहाँ पे आसानी हो जाएगा, नॉट अडल्ट्स, यहाँ पे भी नॉट अडल्ट्स। इसका परसेंटेज उसने पूछा है, तो अब हमें क्या करना है 80% ऑफ 300। सो 80% ऑफ 300 मैं बताता हूँ कैसा सॉल्व करना है। ये एक बेसिक है, 300 इंटू 80/100, ये 0 ये 0, 80 इंटू 3 इज 240। लेकिन पर आपको इस तरह से नहीं करना एग्जाम में, आपको डायरेक्टली ये जो कैलकुलेशन जो है आपको ये आपके माइंड में कैलकुलेट करना है। तो बचा हुआ जो है 240 विल बी द नंबर ऑफ बॉयज हु आर नॉट अडल्ट्स। इन द सेम वे अब इसका वैल्यू हमें क्या करना है, डायरेक्टली ये माइंड में कैलकुलेशन करना है। इस तरीके से 0 0 कट गए, यहाँ 2 इंटू 75 इज 150। सो 150 गर्ल्स नॉन एडल्ट्स हैं और 240 बॉयज नॉन एडल्ट्स हैं। हमें पूछा गया क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट्स। तो ये दोनों का सम करेंगे, ये दोनों का सम करने पे 09390 आया। लेकिन अपने पूरे में कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये पूरे स्टूडेंट से कंपेयर कर रहे हैं। तो 300 + 200 इज 500, 500 इंटू 100, 0 0 कट गए, 5 1s 5 7s 35, 5 8s 40. So 78% of students are not adults. So this is the way how you solve the percentages of different models question. So these were of basic level.
we'll be further calculating doing the models of questions of same models, but those level will be different compared to this. So stay tuned and thank you for watching.